Assalamu alaikum everybody. In this video lecture I would like to let you know that I'm going to start past paper session, and during this session I will be discussing all these papers which you can see on the screen right now, and these are total 7 papers, and if you regularly see them then definitely you can perform very well in upcoming examination. So in this video lecture I will be explaining you the question paper of May-June 2018, and this is section B of this question paper. You can have a look on it. Just have a look on this question paper. I suggest all of you to stop the screen और उसके बाद आप इसको देखें कि कौन से questions हैं. You have to attempt 2 questions out of these questions and have a look on these questions. Stop the video and you can evaluate which questions are possible for you. इसमें मैं इन सब questions को इंशाल्लाह explain करने की कोशिश करूँगा, और ताकि all of the topics are covered in one paper. So starting with question number 2, a dictionary defines efficiency as the power to produce the results intended. Explain what is intended by economic efficiency and why its attainment is considered important. So इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ज़रा तवज्जो से दोबारा से पढ़ें और इसको देखें ज़रा क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, you can stop the video and you can think on it, and afterwards you can again restart the video. Okay, so इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो मेन रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है इकोनॉमिक एफिशिएंसी. सो the main focus will be on this part of the question, और बाकी आपको ज़ाहिर है बाकी जो कमेंट्स हैं वो इसी से आप रिलेट कर रहे होंगे. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन. इकोनॉमिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप बता रहे होंगे कि इट कंटेन्स 2 parts. One is productive efficiency and the other one is allocative efficiency. Then you will have to explain what is meant by productive efficiency and how it is achieved. You will have to use 2 different graphs. One is PPC, production possibility curve. Any point along the production possibility curve shows productive efficiency. And उसके अलावा इसमें आप बता रहे होंगे allocative efficiency के बारे में. Allocative efficiency is achieved when marginal cost is equal to average revenue, or it is achieved when marginal social cost is equal to marginal social benefits. And you will have to basically consider why its attainment is considered to be important. So definitely achieving economic efficiency is considered to be important because इससे आपके जो resources का wastage होता है वो कम होता है. आप उसको best possible way में achieve कर रहे होते हैं, allocate कर रहे होते हैं resources के, which gives basically maximum level of output. और इससे सस्टेनेबिलिटी को भी आप कंसीडर कर रहे होते हैं. मींस कि आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें ताकि करंट जनरेशन्स की नीड्स भी पूरी हो रही हों और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज सफिशिएंटली कंजर्व हो रहे हों. ओके, सो वी कैन हैव अ लुक ऑन द ग्राफ्स ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी while you will be explaining productive efficiency. You will have to make 2 graphs. One is the production possibility curve, which looks like this. This is production possibility curve. We have 2 goods. One is X good and the other one is Y good. We show 2 goods on X and Y axis, and this is the PPC. Any point along the PPC, let's say point A, is productively efficient point. Similarly, productive efficiency can also be explained with average cost curve. And for example, we have this average cost curve. When output is produced at lowest possible average cost, it is known as productively efficient point. For example, let's suppose we produce at point X. This point will be known as X efficient point. For example, if we produce this much output, quantity is Q, this is output, and this is the average cost, let's say it's C. So this is the lowest possible average cost for output Q. So we call it X efficient or productive efficient point. But if we have to pay greater cost for this output level, for example, if we have to pay this much cost
this much cost for C1 for output Q, then it will be economically inefficient, productively inefficient point. And however, this output is, you might be thinking that this point should be the most efficient point. Definitely this is the most efficient point, but this point will only be possible if we extend our output to Q1, and now average cost will reduce to C2. But if we produce only output Q, then average cost, lowest average cost possible is C, and we cannot reduce cost more than C for output Q. So this is productively efficient point. Now coming to allocative efficiency. Allocative efficiency is achieved when marginal social cost is equal to marginal social benefits. There are two conditions. One is equality of marginal social cost and marginal social benefits, and this is also known as Pareto optimality, and this is marginal social benefit and this is marginal social cost. The intersection point is optimum point where cost is equal to benefit, and if we produce this much level of output, it is allocatively efficient level of output. But if we produce more than this, like if we produce at Q1, then it will cause dead weight loss equal to this area. Now social cost is greater than marginal social benefit, so this is the area of dead weight loss, and we also call it negative externalities. When negative externalities exist, it shows market failure and it is inefficient point. Similarly, if we produce output Q2, then again it shows the gap between social cost and social benefits, and again it results in social loss, welfare loss or dead weight loss. And in this case we will be losing, this is the case when we will be losing positive externalities because we are involved in under production. अच्छा, अब इसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि वाई इट इज़ डेड वेट लॉस वाइल बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट. इट इज़ डेड वेट लॉस बिकॉज सोसाइटी विल बी लूजिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ इन दिस केस. ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो अभी हम लूज़ करें, ये बेनिफिट्स अचीव हो सकते थे अगर हम आउटपुट Q2 से Q तक इंक्रीज़ कर देते, जो कि अब हम सेक्रीफाइस करें. इसलिए ये एरिया, ये वाला एरिया डेड वेट लॉस को शो करता है, ये वाला एरिया भी डेड वेट लॉस को शो करता है. Triangle to the right hand side shows negative externalities society will be facing, and triangle to the left hand side of point E is loss of positive externalities. Okay, so ये ग्राफ आप बना रहे होंगे, and again you will have to make another graph which is the equality of marginal cost and price, or it is also equal to average revenue because average revenue is always equal to price. So this is, let's suppose, average revenue, and this is marginal revenue, and this is marginal cost, and this is the point where marginal cost intersects average revenue. So point E is the optimum level of output, and where social cost and benefits will be equal or marginal cost is equal to price. But what monopoly does is monopoly produces at a point where marginal cost intersects marginal revenue. तो आपके पास output monopoly का इतना होता है और marginal cost जहाँ पे marginal revenue को कट करती है, और ये price charge कर रहे होते हैं P1. So it means कि monopoly firms overcharge कर रही होती हैं, under produce कर रही होती हैं, और जब हम under produce कर रहे होते हैं, again you can refer this concept to this previous graph. Again we can refer it to this graph. Optimum point के left hand side पे ये जो triangle बन रही होती है, ये dead weight loss होता है. अब यहाँ पे optimum point हमारा point E है. Point E के left hand side पे हमारे पास ये जो triangle build हो रही है, ये भी हमारे पास dead weight loss है. So monopoly firm is involved in underproduction and causes dead weight loss equal to this area, and again it is not economically efficient. So for being economically efficient, allocatively efficient, marginal cost should be equal to price, and this is achieved when our output is Q. So these are the concepts relevant to economic efficiency, when economic efficiency is achieved. And now at the end you will have to basically comment on the statement of question which says that why it is important. So it is really important to achieve economic efficiency because it uses minimum possible resources to get maximum output.
Okay, so now coming to the second part of this question, discuss whether it is sometimes necessary to use the public sector to try to achieve allocative efficiency, economic efficiency rather than private sector. So इस क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर मीन गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसकी इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट कैन हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी. और प्राइवेट सेक्टर चूँकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन एम कर रहा होता है, और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन एम कर रहा होगा डेफिनेटली वो फिर अंडर प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है. दोनों केसेस में मार्केट फेलियर चूँकि अकर हो रहा होता है. आप इस ग्राफ की तरफ इसको दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं. यू कैन रेफ़र द एग्जामिनर टू दिस ग्राफ. आप बता सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा होता है तो या वो ओवर प्रोड्यूस करता है, डेड वेट लॉस को कॉज करता है, या फिर वो अंडर प्रोड्यूस करता है, अगेन डेड वेट लॉस को कॉज करता है. अगर ऐसा सिनेरियो है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट विल यूज़ मल्टीपल पॉलिसीज़ टू अचीव दिस ऑप्टिमम पॉइंट विच इज़ एलोकेटिवली एफिशिएंट पॉइंट. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी और एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ऑप्टिमम लेवल की तरफ इकोनॉमी मूव करेगी. इसी तरह अगर अंडर प्रोडक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ऑप्टिमम लेवल की तरफ हम जाएं, जो कि एलोकेटिवली एफिशिएंट पॉइंट होता है. और क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकती है? गवर्नमेंट कैन यूज़ मल्टीपल अदर पॉलिसीज़ लाइक मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है. सिमिलरली मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट आप इसमें एलोकेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली बफर स्टॉक स्कीम्स होती हैं, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन ऑफ मोनोपोली फर्म्स, nudge theory. These are multiple policies that government can use to achieve allocatively efficient point. तो लेकिन on the other hand since it is discuss question, तो आपको इन policies के against भी बताना होगा कि government sector जब involve होता है तो उस केस में ये policies लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा effective हों. जैसे गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी प्रोवाइड की प्राइवेट सेक्टर को तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्राइवेट सेक्टर उसको एफिशिएंटली यूज़ करेगा और ऑप्टिमम लेवल तक प्रोडक्शन को ले जाएगा. तो मिस यूज़ भी हो सकता है उस सब्सिडी का. इसी तरह से जो बाकी की कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी की सारी जो पॉलिसीज़ मैंने मेंशन की हैं वो भी पॉलिसीज़ ज़ाहिर हर दफ़ा इफ़ेक्टिव नहीं होंगी. और क्यों इफ़ेक्टिव नहीं होंगी उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे एंड एट द एंड यू विल बी गिविंग बेसिकली कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, और कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बट इट विल हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दीज पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली. सो इस क्वेश्चन की इस पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली के कुछ फीचर्स आप पिक करेंगे, उनको आप रिलेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. जैसे परफेक्ट कंपटीशन का आप बता रहे होंगे कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर एंड इन मोनोपोली देयर इज़ ओनली वन फर्म, एंड परफेक्ट कंपटीशन इज़ वन एक्सट्रीम एंड द मोनोपोली इज़ अनदर एक्सट्रीम. इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर मिलियंस ऑफ सेलर्स एंड इन मोनोपोली देयर इज़ ओनली वन सेलर इन द मार्केट. So these are totally different from each other in this case. Again, you will have to talk about products. In perfectly competitive market, products are homogeneous, mean they are identical and same. They can be virtually identical, they are highly standardized as well. And in case of monopoly, products can be differentiated. And again, you can talk about another feature of entry exit. In case of perfectly competitive market, entry and exit is totally free. Any firm can enter the industry anytime it wishes to, and it can also leave the industry because of no sunk cost. In case of monopoly, there is single seller which has set up the business throughout the country, for example, and it will not allow any other firm to enter the industry. And similarly, the same monopoly firm finds it really difficult to leave the industry because it has high sunk cost. और एंट्री एग्जिट के काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स होते हैं. प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं. परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में प्राइसेस सेम होती हैं, एंड इन केस ऑफ मोनोपोली प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड
एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन के दे चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ड्यू टू पर्सन, प्लेस और यूज़, 3 मेन रीजंस होती हैं। और ये आपके पास मल्टीपल फीचर्स आ गए जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करें। ओके, सो अदर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अब एग्जामिनर ने आपको बाउंड नहीं किया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ग्राफ्स बनाएं या मोनोपोली के ग्राफ्स बनाएं, इट्स अप टू यू। आप एक ग्राफ मोनोपोली का बना लें, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बना लें, लाइक इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ सपोज बना लें, एंड इन केस ऑफ मोनोपोली यू कैन मेक ग्राफ ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ मोनोपोली। लेकिन अगेन आपके लिए मतलब कंपल्शन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की स्पीड अच्छी होती है, वो जल्दी लिख लेते हैं। इफ़ यू हैव द सेम फीचर देन यू कैन मेक ग्राफ ऑफ बोथ एज वेल, तो आपका रिस्क ऑफ लॉस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो कमिंग टू दिस सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कि यू हैव टू मेक ग्राफ फॉर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, या फिर आपकी जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस क्या बताई कि टोटल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। लेट्स सपोज हम मोनोपोली का ग्राफ बना लेते हैं, तो मोनोपोली के केस में आपके पास जो ग्राफ होगा दैट विल लुक लाइक दिस इज़ एवरेज रेवेन्यू, दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, and you can plot quantity on x, this is origin point, on y-axis we have 3 variables, price, revenue and cost. So this is marginal cost and this is marginal revenue. In case of monopoly firm, marginal cost intersects marginal revenue to set up equilibrium. So equilibrium quantity is, let's suppose, Q1 and equilibrium price will be P1. Now for profit maximization or for supernormal profit, average cost must be somewhere at this point. This is average cost curve. Keep in mind marginal cost intersects average cost from its minimum point. तो आपको बनाना ये होगा कि average cost इस point के बाद immediately rise करनी चाहिए. So for this much output Q1 average cost will be this much, जहाँ पे average cost को ये perpendicular cut कर रहा है, ये वाला perpendicular E से Q1 का perpendicular, so average cost will be C and this is suppose point A. तो this is super normal profit. इस केस में आपके पास क्या है कि रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, या प्राइस आपकी प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे ये कंडीशन आप लगा सकते हैं कि प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। फॉर नॉर्मल प्रॉफिट ऑल ग्राफ इंटायर ग्राफ विल रिमेन एग्जैक्टली सेम, ओनली वन चेंज विल अकर, दैट इज चेंज इन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट विल मूव टू somewhere to this point and now it will look like this. So average cost AC1 shows that firm will be earning normal profit because in this case price and average cost both are equal. So you can make this graph or you can make graph of perfectly competitive market as well, it's up to you, or you can make both graphs as well. Okay, so the next requirement of this question is consider whether supernormal profit is possible in perfect competition. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या बता रहे होंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट में डेफिनेटली पॉसिबल होता है, बट इन शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट में। और उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एनी न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री एनी टाइम इट विशेज़ टू, और जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ के चले जाएँ, जिनको लॉस हो रहा होगा वो छोड़ जाएंगी, और रिमेनिंग फर्म्स को एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो उनका जो लॉस है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, मैनी न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री, और जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी तो डेफिनेटली उससे भी क्या रिज़ल्ट निकलता है, उससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड एज अ रिज़ल्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स पर फर्म कम हो जाएंगे। ओके, सो ये आपका एंड पे इसका कमेंट आ जाएगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और रीज़न उसकी आप बता देंगे क्योंकि लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ जाती है नंबर ऑफ़ फर्म ज़्यादा होने की वजह से, तो फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है। नाउ कमिंग टू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन,
firms do not always wish to maximize profits. ठीक है, so profit maximization is the primary aim of every business organization. Every business organization wishes to maximize its profit, no doubt, but every firm do not always wish to maximize profit. So what are the alternative aims of the firms? Consider what alternative aims they might have. तो आपको ये बताना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ बताना होगा कि ऑल्टरनेटिव एम्स क्या हैं, एंड वेदर द आइडिया ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा माइट बी यूजफुल इन देयर डिसीजन मेकिंग. तो इसमें आप बता रहे होंगे, फिर एक्सप्लेन कर रहे होंगे इसको. सो आप बताएंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती क्या है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सिचुएशन इन विच फर्म्स produce output where marginal cost is equal to marginal revenue and they charge price accordingly. और उसके लिए आप ग्राफ बना रहे होंगे. ग्राफ आप जब बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह का होगा? ग्राफ विल लुक लाइक दिस. सपोज करें कि वी मेक द सेम ग्राफ ऑफ मोनोपोली एंड दिस इज बेसिकली द सिनेरियो. दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड marginal cost cuts marginal revenue from below. So this is the point where output is produced Q and price charged is P. This price P will maximize profit for the firm and this output Q will also maximize the profit. So this is condition for profit maximization. Profit maximization is achieved where marginal cost is equal to marginal revenue. We have output or quantity on X. We have three variables on Y: price, revenue and cost. Now coming to the alternative aims. Alternative aims include there are certain aims, multiple aims, जिनमें से आप देख सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी इनका एम हो सकते हैं. और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होना चाहिए, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होनी चाहिए. सो इसके लिए भी आप ग्राफ बना रहे होंगे. आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस. आपको दो ग्राफ्स बनाने होंगे ऊपर नीचे. आप इसमें देख सकते हैं कि आपका नीचे वाला ग्राफ में हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइंस ड्रॉ करें. दिस इज़ एवरेज रेवेन्यू, दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 0. एंड इफ़ वी कनेक्ट दिस ग्राफ टू द अपर पैनल ऑफ दिस ग्राफ, देन total revenue at this point will be maximized. We have total revenue here and we have quantity produced here, quantity sold here, and this is origin point. We have A, R and M R on y-axis here, and we have again quantity produced here. So इस point पे marginal revenue जब 0 हो जाता है, आपका sales revenue या total revenue आपका maximized हो जाता है. Then you will have to explain achieving efficiency is one of the important aims of business organizations. तो alternative aims में efficiency भी एक आ जाएगा ग्राफ आपके पास. So इसकी efficiency के लिए ग्राफ किस तरह का बनता है? You have to make graph like this. This is marginal cost, this is average revenue, this is marginal revenue, and efficiency is achieved where marginal cost is equal to average revenue. So firm will produce this much output and it will charge price this much. We have definitely quantity on X, we have price, revenue and cost on y-axis, three variables on y-axis. We call this scenario as marginal cost pricing. Marginal cost pricing भी aim का part हो सकता है, या achieving efficiency भी aim का part हो सकता है. Another alternative aim of the business organization is sales volume maximization, and sales volume is maximized when average cost is equal to average revenue, and we can make graph for this. And this is average revenue, this is marginal revenue, and this is marginal cost, and we can make average cost curve like this. This is average cost, and average cost intersects average revenue at this point E, and this point is basically sales volume maximization point. यहाँ पे आपका output ये होगा और आपकी price ये होगी. This is origin point, and again we have quantity on X, and we have three variables: price, revenue and cost on y-axis. इसी तरह से आपके पास मल्टीपल और एम्स भी हो सकते हैं. अगर आप सारे एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपका. लाइक लॉस मिनिमाइजेशन भी एक एम हो सकता है कि ये एम ऐसे सिनेरियो में होता है जब बिज़नेस को लॉसेस हो रहे हो, तो उस टाइम पे बिज़नेस सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और सर्वाइवल के लिए वो कोशिश करता है कि उसका जो लॉस है वो इतना मिनिमाइज़ हो जाए कि एटलीस्ट उसको
इंडस्ट्री लीव ना करनी पड़े। एथिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लाइक CSR पॉलिसी को अडॉप्ट करना, ट्रिपल बॉटम लाइन को मीट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, ये भी एम्स का पार्ट होता है। सॉल्विंग प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव एम्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्रिंसिपल से मुराद होता है बिजनेस का ओनर और एजेंट से मुराद होता है वर्कर। सो प्रिंसिपल और एजेंट यानी एम्प्लॉयर यानी बिजनेस ओनर और वर्कर के दरमियान में भी काफ़ी क्लैशेस अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, उनको भी सॉल्व करना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का एक पार्ट हो सकता है। लाइक जैसे क्या इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं जनरली लाइक प्रिंसिपल चाहता है, ओनर ऑफ द बिजनेस चाहता है कि मैक्सिमम काम लिया जाए वर्कर से, उनको थोड़े वेजेस पे किए जाएँ, और एजेंट यानी वर्कर चाहता है कि उसे काम नहीं करना पड़े, वेजेस बहुत ज़्यादा मिल जाएँ। सो दीज आर द मल्टीपल बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स विच में अराइज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो अगेन ये भी प्रॉब्लम होगा बिजनेस के लिए। सेटिस्फाइंग प्रॉफिट भी अगेन एक मेन एम होता है बिजनेस का। सेटिस्फाइंग प्रॉफिट इज़ अचीव्ड व्हेन प्राइस फॉल्स anywhere between profit maximizing price and sales volume maximizing price। so जहाँ पे सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइसेस हैं, उनके दरमियान में कहीं पे भी प्राइस सेट होगी तो उसको हम सेटिस्फाइंग प्रॉफिट का नाम देते हैं। और ये वो प्राइस होती है जो सब लोगों को सेटिस्फाई रखती है, लाइक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस के, जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, वो सारे लोग सेटिस्फाइड रहते हैं और बिज़नेस कंटिन्यू रहता है। सो दीज आर मल्टीपल बेसिकली ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस। अच्छा, आपको एग्जामिनर के एक एक स्टेटमेंट का एक एक वर्ड का आंसर देना होगा, अदरवाइज आप फिर फुल मार्क्स नहीं गेन कर सकते। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वेदर द आइडिया ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा माइट बी यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो प्रिजनर्स डिलेमा का कोई कॉन्सेप्ट बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फॉल नहीं करता, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिसीजन मेकिंग से इसका कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है, बट इट हैज़ लिंक इन अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स। लाइक जैसे ओलिगोपोली फर्म्स में क्या होता है कि फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए डेफिनेटली वो क्या करती हैं, फर्म्स प्रिजनर्स डिलेमा या लाइक प्राइसिंग डिसीजन में इसका यूज़ करते हैं, ऐसी प्राइसेस सेट करते हैं जिससे सबके प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। सो प्रिजनर्स डिलेमा का प्राइस डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई रोल नहीं है, बट इट हैज़ रोल इन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये आपका इसके अंदर कमेंट आ जाएगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड यूनियंस, minimum wage legislation and large powerful business invalidates the conclusions of traditional economic theory of wage determination. The theory needs to be replaced. तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि क्योंकि वेज डिटर्मिनेशन तो जनरली यूनियंस या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से होती है, तो इट मीन्स के MRP थेरी का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थेरी है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थेरी, कीप इन माइंड जब भी वो क्या है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थेरी या इकोनॉमिक थेरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन या फिर इकोनॉमिक थेरी ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट टू डिटर्मिन वेजेस, तो क्लियर कट उसका मतलब होता है यू विल हैव टू एक्सप्लेन MRP थेरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थेरी। सो यहाँ पे फिर उसका क्या मतलब है, यहाँ पे उसका मतलब ये है कि ट्रेड यूनियंस के थ्रू वेजेस सेट होते हैं, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन के थ्रू होते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल थेरी लाइक MRP थेरी का कोई यूज़ ही नहीं है, तो इसको रिप्लेस होना चाहिए। हाउ फार डू यू अग्री विद दिस असर्शन, तो इस स्टेटमेंट के साथ आप कितना अग्री करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सो इसमें क्या कर रहे होंगे, इसमें आपको सबसे पहले MRP थेरी को बताना होगा। ज़ाहिर है किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना है तो पहले आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि ये चीज़ है क्या, फिर आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थेरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन से मुराद है MRP थेरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थेरी, जो कि बेस करती है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट पे, और इसका मतलब होता है कि एंट्री ऑफ न्यू वर्कर्स इनटू द मार्केट इज़ फ्री, एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट इज़ अगेन फ्री, और हर वर्कर को होमोजीनियस समझा जाता है, मीन एवरी वर्कर इज़ एग्जैक्टली सेम, ही हैज़ सेम प्रोडक्टिविटी, सेम एफिशिएंसी। अगरचे ये रियलिटी के क्लोज नहीं है, लेकिन ये थेरी सपोज करती है इस चीज़ को। इसलिए व्हेन ऑल वर्कर्स आर डेफिनेटली एग्जैक्टली have same potential, same efficiency, they must be paid equal wage rate। तो इसका मतलब ये है कि MRP थेरी की ये सारी assumptions हैं, और इन assumptions की बेस पे MRP थेरी डिटर्मिन करती है कि वेज रेट किस तरह से सेट होना चाहिए।
सो MRP theory के हिसाब से when in perfectly competitive market each worker is paid same wage, so this is marginal cost of labor, this is origin point, and this is quantity of labor. On y-axis we have wage rate. Okay, so MRP looks like this. This is marginal revenue product of labor, MRP, and this is an alternative term for demand for labor. और इसको आप एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज वेज इज सेम, सो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑल विल बी सेम. और इक्विलिब्रियम MRP थ्योरी के हिसाब से होता है जहाँ MRP MC के इक्वल होता है, लाइक पॉइंट E पे. इट मीन्स कि इतने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए. सो ये ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट होगी. अगर आप एम्प्लॉय से ज़्यादा करेंगे तो MRP थ्योरी कहती है कि ये ओवर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, और ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में आप देख सकते हैं कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है. सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. सो इट मीन्स ये ओवर एम्प्लॉयमेंट को शो करेगा. सो दिस इज़ ओवर एम्प्लॉयमेंट. ओवर एम्प्लॉयमेंट मीन कि जितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने चाहिए थे आप उससे ज़्यादा एम्प्लॉय करें, इसीलिए वर्कर आपको कॉस्ट ज़्यादा करें और आपको आउटपुट कम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम है. ऐसा वर्कर जो आपको कॉस्ट ज़्यादा करे, आपको रेवेन्यू कम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ऐसे वर्कर्स को कम हायर करना चाहिए, मीन एम्प्लॉयमेंट हमें रिड्यूस करनी चाहिए. On the other hand, if you can see the situation here, if we employ Q2 quantity of workers, so this is underemployment. और underemployment के केस में ये होता है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है. इट मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वर्कर. मीन आपको जो एडिशनल वर्कर आप लगा रहे हैं वो आपको आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, आपके फर्म के रेवेन्यू में ज़्यादा एडिशन करे, आपको कॉस्ट कम करे. ऐसे वर्कर्स तो बिज़नेस के लिए ब्लेसिंग होते हैं, ऐसे वर्कर्स को ज़्यादा एम्प्लॉय करना चाहिए. सो दिस इज़ MRP थ्योरी. इसके बारे में आप थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे, और क्रिटिसाइज़ करते हुए आप इसमें बता रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आप साथ में ये भी सजेस्ट कर रहे होंगे कि बेशक रियलिस्टिक नहीं है, हर वर्कर इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं होता, सबको एक जैसे बेच नहीं मिल रहे होते रियलिटी में. तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर क्रिटिसाइज़ करने के लिए, लेकिन आप साथ में ये भी बता रहे होंगे कि ये आपको बेसिक एक थीम प्रोवाइड करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि वेज सेट करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. इसलिए आप इस थ्योरी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ना होने की वजह से फिर वेजेस डेफिनेटली ट्रेड यूनियंस के थ्रू भी सेट हो रहे होते हैं, मिनिमम वेज लॉज के थ्रू भी सेट हो रहे होते हैं जब गवर्नमेंट वेजेस सेट कर रही होती है. So now you will have to discuss about wage determination under trade unions. Monopoly trade unions जब wages set करती हैं तो वो किस तरह से set करती हैं. Trade unions basically are the workers associations which work for the benefits of member workers. इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको ये 3 मेन लाइंस बनानी ज़रूरी हैं. आप ये 3 लाइन सिंपल सा फिनोमिना है, बहुत ही सिंपल से वे से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्विकली आप ये 3 लाइंस ड्रॉ करें, इसको आप एवरेज कॉस्ट लेबल कर दें, इसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर लेबल कर दें, और ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है. एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर को हम सप्लाई ऑफ लेबर भी कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम डिमांड फॉर लेबर भी कहते हैं. अगर वाई पे देखें तो वाई पे हमारे पास यहाँ पे वेज रेट होता है, दिस इज़ ऑरिजिन पॉइंट, एंड दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड. ओके, सो जहाँ पे अगर ओपन मार्केट की बात करें, जहाँ पे वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा हों जिनको डिमांड किया जा रहा हो, एम्प्लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ पे वेजेस सेट होंगे जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सो दिस विल बी द पॉइंट वेयर मार्केट वेज रेट इज़ सेट इन ओपन मार्केट, जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट इतनी होगी और वेज इतना सेट होगा. इसको लेट से मैं QP का नाम दे देता हूँ, WP और EP का नाम दे देता हूँ. लेकिन मोनोपोली ट्रेड यूनियन अगर ओपन मार्केट में वेज रेट WP चल रहा है तो यूनियन बनाने का फ़ायदा क्या होगा, तब होगा जब ये वेज यहाँ से ज़्यादा सेट करेंगे. मींस के इक्विलिब्रियम ये सेट करेंगे EM पे, वेज रेट ये डिमांड करेंगे WM, और वर्कर्स ये प्रोवाइड करेंगे QM. तो मोनोपोली ट्रेड यूनियन वेजेस ज़्यादा सेट करती है. रियलिटी में ऐसा ही होता है कि इन रियलिटी लोगों की यूनियंस बनी होती हैं और वो ज़्यादा वेजेस सेट कर रहे होते हैं. इट मीन्स कि MRP थ्योरी का यहाँ पे यूज़ मिनिमाइज हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मिनिमम वेज लॉ. मिनिमम वेज लॉ जनरली गवर्नमेंट ज़ाहिर सेट करी होती है, और मिनिमम वेज के केस में वेजेस आर सेट अबव इक्विलिब्रियम. सो दिस इज़ डिमांड फॉर लेबर, दिस इज़ सप्लाई ऑफ लेबर. इक्विलिब्रियम वेज रेट इन ओपन मार्केट विल बी WP and employment will be equal to QP, and again we have quantity of labor on X and we have wage rate on Y-axis. Okay, so government may set wage rate above equilibrium like to support workers.
सो दिस इज़ द मिनिमम वेज रेट, और इसको हम मिनिमम वेज रेट का नाम देते हैं, मिनिमम वेज लॉ भी कह सकते हैं। इस केस में आपके पास सरप्लस सप्लाई ऑफ लेबर क्रिएट हो जाती है, बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर। सो वेज रेट रियलिटी में गवर्नमेंट भी लाइक इस तरह से सेट कर रही होती है। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू इन रियलिटी वेजेस सेट हो रहे होते हैं, लाइक मोनोपोली एम्प्लॉयर के केस में सेट हो रहे होते हैं, बायलैटरल मोनोपोली के केस में सेट हो रहे होते हैं। अगर हम मोनोपोली एम्प्लॉयर की बात करें तो मोनोपोली एम्प्लॉयर इज़ द सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर। अगेन आपको ये 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है। दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज़ ऑल्सो डिमांड फॉर लेबर, and this is average cost of labor which is also equal to supply of labor, this is marginal cost of labor। ओपन मार्केट में, जहाँ पे ओपन मार्केट जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कोई एंट्री एग्जिट का कोई मसला नहीं है। लेकिन मोनोपोली एम्प्लॉयर क्या करता है, इक्विलिब्रियम सेट करेगा यहाँ पे EM पे, और इतने वर्कर्स को ये हायर करेगा। मोनोपोली एम्प्लॉयर इज सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर। जब एम्प्लॉयर सिंगल हो ओपन मार्केट वेज रेट से, वो फिर वेजेस कम ऑफर करेगा। सपोज़ करें कि अगर ओपन मार्केट है, वेज रेट यहाँ पे $100 पर वर्कर के हिसाब से चल रहे हैं, तो जब सेलर एक ही होगा, एम्प्लॉयर एक ही होगा, यानी एक ही बंदा है जिसने सब लोगों को हायर करना है, तो वो ज़ाहिर है फिर अपनी मोनोपोली पावर को यूज़ करते हुए वेजेस इससे कम ऑफ़र करेगा। फिर वो कितने ऑफ़र करेगा, जहाँ पे इसका परपेंडिकुलर EM से QM तक का परपेंडिकुलर सप्लाई ऑफ लेबर को कट कर लेता है, वो इतने वेजेस ऑफ़र करेगा। उसकी वजह ये है, उसको पता होता है कि बिकॉज ही इज़ द सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर, अगर वो ये वेजेस भी ऑफ़र करेगा तो चूँकि ये सप्लाई ऑफ लेबर को कट करें यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे सप्लाई करने के लिए अपने आप को विलिंग हो जाएंगे, तो वो मिनिमम पॉसिबल वेजेस पे करता है। यहाँ पे मिनिमम का लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया, दिस इज़ नॉट फॉर द टेक्निकल वर्ड मिनिमम वेज रेट। यहाँ पे मिनिमम से मुराद है लोएस्ट पॉसिबल वेज रेट वो पे करने के लिए कोशिश करता है। और फिर अगेन देन यू हैव टू बेसिकली आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल दिस यू विल हैव टू मूव टू द कंक्लूजन में आप बता रहे होंगे कि although in reality wages are set through multiple ways, trade unions, minimum wage, maximum wage, monopoly employer, bilateral monopoly, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस की बेस पे वेजेस सेट हो रहे होते हैं और हर एक के पोटेंशियल के प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सेट हो रहे होते हैं। इन रियलिटी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी इम्पॉर्टेंस फिर भी रहेगी, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमें बेसिक फिनोमेना प्रोवाइड करती है। ये मेरी तरफ से कंक्लूजन है, आप कुछ भी कंक्लूजन दे सकते हैं, जो भी कंक्लूजन देंगे एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द मैक्रो पार्ट। आखिरी जो 3 क्वेश्चंस हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट हैं, इनको मैं क्विकली सम अप करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 5 सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये बेसिकली वैसे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, इसको आप बुक में से रिवाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फ्रिक्शनल क्या है, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2 जॉब्स होती है और ये इतनी कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होती है। जैसे सपोज़ करें कि लाइक फ़िशिंग इंडस्ट्री के अंदर एक फ़िशरमैन है, उसको फॉर एग्जांपल फ़िशिंग का सीज़न ऑफ होता है तो वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा, फिर दोबारा एम्प्लॉय हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री में देख लें, शुगर के इनका सीज़न ऑफ होता है तो वर्कर्स रिडंडेंट हो जाते हैं, फिर हायर हो जाते हैं। ट्यूटरिंग इंडस्ट्री में देखें, एग्ज़ाम का सीज़न होता है, ट्यूटर्स को लोग हायर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। इसी तरह से आप फिल्म एक्टर्स की बात कर लें तो फिल्म एक्टर्स के साथ भी यही होता है, एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ख़त्म हुआ, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो एक जॉब से दूसरी जॉब के दरमियान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, बिकॉज आपकी जो स्किल है दैट रिमेन्स सेलेबल, आप उसको फिर भी बेच सकते हैं, आपको कोई नई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उसी स्किल के साथ आप न्यू जॉब पे फिर से एडजस्ट हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली हार्मफुल होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी एक इंडस्ट्री को या एक पूरे रीजन को अफेक्ट कर रही होती है, फ्रिक्शनल एक बंदे को अफेक्ट कर रही होती है। तो इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से आ सकती है, एग्जिस्टिंग वर्कर्स न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, उनको निकाल दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, रिडंडेंट कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इस केस में ये पूरा एक रीजन भी अफेक्ट हो सकता है, पूरी एक इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो सकती है। लेट्स से कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन आ जाता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए होती है, तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब
मसला ये होता है कि अब जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आपका स्किल सेलेबल नहीं रहता, अब आपको नया स्किल सीखना पड़ता है, फिर आप एम्प्लॉयड होते हैं। तो इस तरह आप बता रहे होंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होने से किस तरह से चेंज आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टन स्ट्रक्चर होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल CEO होता है, उसके अंदर फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स फर्दर सबऑर्डिनेट्स, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे। अब उनमें से कोई, उस स्ट्रक्चर में से कोई भी एक लेयर अगर आप रिमूव कर देते हैं तो उस लेयर में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सपोज़ करें हम एक स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में एक आपके पास हेड ऑफ़ स्कूल होता है, हेड ऑफ़ स्कूल के अंडर आपके मल्टीपल प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स के अंडर फिर वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर सेक्शन हेड्स होते हैं। सपोज़ करें कि अगर स्कूल ने सोचा कि जी प्रिंसिपल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हेड के बाद वाइस प्रिंसिपल्स ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और वो उस लेयर को हटा देते हैं, तो इट मीन्स कि ऑल प्रिंसिपल्स विच वर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज से भी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो सकती है। कंसिडर विच वुड बी लाइकली टू हैव ग्रेटर नेगेटिव इफेक्ट्स। तो इसको मैंने इनडायरेक्टली सारा एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव इफेक्ट्स ज़ाहिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शनल के इतने नहीं होते। आपका सेलेबल स्किल है, आप दोबारा से नई जॉब पे आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। असेस द व्यू दैट सप्लाई साइड पॉलिसीज़ आर मोस्ट इफेक्टिव वे टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज होने से होता है। और सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है? सप्लाई साइड पॉलिसी में आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं, लाइक रिमूविंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोवाइडिंग सब्सिडी, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन। ये मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं जो सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। अगर ये वाली पॉलिसीज़ गवर्नमेंट यूज़ करती है तो आप बता रहे होंगे कि किस हद तक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जैसे एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का स्किल सेलेबल नहीं रहता। अब अगर गवर्नमेंट उनको नए स्किल के हिसाब से ट्रेन करेगी, एजुकेट करेगी, तो डेफिनेटली वो दोबारा से उनका स्किल सेलेबल हो जाएगा और वो दोबारा से एम्प्लॉय हो जाएंगे। इस तरह से आप बता रहे होंगे। लेकिन अगेन दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे होंगे कि ये सप्लाई साइड पॉलिसीज़ लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा इफ़ेक्टिव हों। जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की मैंने बात की, अगर वर्कर्स रिलक्टेंट हैं न्यू स्किल सीखने के लिए, वो विलिंग ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो नई स्किल सीखेंगे नहीं और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड रहेंगे। इसी तरह बाकी पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। और इसी तरह से जब आप सप्लाई साइड के नेगेट कर रहे होंगे तो आप दूसरी पॉलिसीज़ को भी साथ में, लाइक डिमांड साइड पॉलिसीज़ को भी बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और फिर एंड पे आप कंक्लूजन में ये बता रहे होंगे कि जो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं, नो डाउट दे आर रियली इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ टू अचीव this aim of removing the problem of structural unemployment, solving the problem of structural unemployment। लेकिन हर दफ़ा ये पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, सो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, सो आई एम बेसिकली going to cut it short and I'm going to skip question number 6 and I'm going to discuss question number 7 only now। और इसी तरह से डेली बेसिस पे मैं एक पेपर डाल रहा हूँ, आप लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। वो लोग जिनको क्वेश्चनिंग टेक्निक नहीं आती, आंसरिंग टेक्निक नहीं आती, क्वेश्चन को कम्प्रीहेंड करना नहीं आता, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अच्छा हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस फिर बार बार आ रहे होते हैं। Question number 7, both developed and developing economies can experience high level of unemployment, high rate of inflation and large current account deficit. Therefore, there is now no real difference between these two types of economies. How far would you agree with the view that this statement is misleading? Okay, so अब इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ फीचर्स हैं या कुछ उनके इंडिकेटर्स हैं जो सेम है, लाइक दोनों कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, दोनों कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, डेफिसिट भी दोनों में है, तो इसका मतलब है दोनों में कोई डिफरेंस ना रहा, डेवलप्ड और डेवलपिंग एक तरह की होगी। तो आप बता रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड में भी हाई हो सकती है, डेवलपिंग में भी हाई हो सकती है, मल्टीपल उसकी रीजंस हो सकती हैं, डेफिसिट भी मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। आप बता रहे होंगे ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दोनों के एक तरह के हो सकते हैं और उसकी रीजंस भी बता रहे होंगे, लॉजिक्स भी बता रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की रीज़न ये भी हो सकती है कि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट
ज़्यादा होने की वजह ये हो सकती है कि वहाँ की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में है, ज़्यादा है, बट एक में रीज़न और है, दूसरे में रीज़न और है, तो इसलिए दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। इसी तरह डेफिसिट को भी आप बता रहे होंगे। डेफिसिट सपोज़ करें, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इसलिए डेवलप का इसलिए लेट्स से कि डेफिसिट ज़्यादा है क्योंकि वो दूसरों को लोन्स दे रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में पैसे उनके जा रहे हैं जो फ्यूचर में उनको रिटर्न देंगे, तो डेफिसिट उनको भी कॉज हुआ। दूसरी कंट्री की तरफ देखें तो वो इंपोर्ट ज़्यादा करवा रही थी, इसलिए उसका डेफिसिट ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट उसका भी ज़्यादा है, बट दोनों की रीज़न्स अलग हैं। इन्फ्लेशन एक कंट्री में हो सकता है कि सप्लाई कम होने की वजह से हो रहा हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो, जो कि ज़्यादा प्रोबेबली पॉसिबल होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो सकता है एग्रीगेट डिमांड हाई होने की वजह से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक गुड इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक बैड इन्फ्लेशन है, तो दोनों की रीज़न्स अलग हैं दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन इन्फ्लेशन स्टिल दोनों में हाई है, तो ये ऐसा पॉसिबल होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकी बेस पे, इन इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि दोनों कंट्रीज़ अब एग्जैक्टली सेम हो गई हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। डिफरेंस विल प्रीवेल बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट होंगी। इनकम पर हेड दोनों की डिफरेंट होगी, जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस होगा, पर कैपिटा इनकम डिफरेंस होगी, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ दोनों में डिफरेंट होंगी, लिटरेसी रेट दोनों में अलग होगा, एचडीआई दोनों में अलग होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो लोगों को अवेलेबल होंगी उसमें चेंज होगा, बर्थ रेट डेथ रेट इन चीज़ों का फ़र्क होगा। इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव नेट माइग्रेशन का भी दोनों में डिफरेंस आ सकता है, और इसी तरह से बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो हम डेवलप्ड और डेवलपिंग को यूज़ करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो अभी भी प्रीवेल करेंगे। तो इट मीन्स के दोनों का फ़र्क ख़त्म नहीं हो, दोनों में फ़र्क जो डिफरेंस है वो अब अगेन रहेगा, अगर ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेम भी हैं तब भी रहेगा। सो एंड पे आपको कंक्लूजन देना होगा, कंक्लूजन में आप यही लिख रहे होंगे कि ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड current account deficit might be very high in both countries, but still we cannot basically consider them same type of countries. We can again differentiate them easily. So इसके अंदर ये आप बता रहे होंगे। So this is it for today। और अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे इस चैनल को विज़िट करें, और डेली बेसिस पे मैं एक पेपर डाल रहा हूँगा। इनिशियली आई थॉट कि मैं ऑनलाइन चला जाऊँगा, लाइव चला जाऊँगा, लेकिन again it is really difficult to manage time on fixed time 4 o'clock for going live with you। तो लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एक वीडियो बना के पेपर एक पूरा डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।